Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are moving towards our second lecture. Last time, dear students, हमने बायोलॉजी की बेसिक ब्रांचेस को फॉसिल्स तक, पैलेंटोलॉजी तक पढ़ा था और हमने समझा था कि व्हाट आर फॉसिल्स. तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे जेनेटिक्स की तरफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स. सिंपली वी कैन डिफाइन एज genetics is the study of genes. Now what is genes? Genes particular messages that are moved from our ancestors to offsprings. Inheritance को भी यहाँ पे हम क्लियर करेंगे. Inheritance means the transmission of characters from one generation to other. Okay dear students, it's mean that simply in genetics we will study about the genes. Next one, zoogeography. Okay dear students, this is the combination of three words. Zoo mean animals, geo mean earth, and graphy, three things: occurrence, distribution, occurrence and distribution of different living organisms in different geographical regions. Geographical regions of the world. Okay, simply it's mean that in zoogeography, dear students, we will study about the occurrence and distribution of different organisms, animals in different geographical regions of the world. Okay dear students, basic definitions के साथ अब हम next discuss करेंगे molecular biology. Molecular biology. Molecules of life. In living organisms, many molecules are present that make the subcellular structures, that is organelle. Molecular level में हम living body के अंदर जितने भी molecules हैं उन सबको discuss करेंगे. It's mean that we can simply define as molecular biology. Biology is the branch of biology which deals with the structure and composition of cells. सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा at molecular level. सिंपल. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे, हमारे पास है environmental biology. Environmental biology, dear students, environment, our surrounding is our environment. Living organisms का interaction उनकी surrounding के साथ, उनका क्या impact है उनके environment के ऊपर और environment के साथ उनका क्या relation है. So in this branch of biology we will study about the relation of organisms with their environment. Next, freshwater biology. Dear students, on earth there are three types. कह लें कि हम डिविजन्स हमने वाटर की टाइप की हुई हैं जो कि अर्थ के ऊपर अवेलेबल है. हमारे पास फर्स्ट वन है फ्रेश वाटर, नेक्स्ट है मेरीन वाटर एंड थर्ड है ब्रैकिश वाटर. हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, और ब्रैकिश वाटर.
ओके, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. हैविंग लेस सॉल्ट एज कंपेयर टू ब्रैकिश वाटर एंड मरीन वाटर. नेक्स्ट, brackish water having more salt as compared to fresh water but less than marine water. And at last, marine water having more salt as compared to brackish water and fresh water. Fresh water dear students available होता है canals में, rivers में, ponds में. brackish water estuaries के अंदर होता है. estuaries वो एरिया है जहाँ से fresh water ओशन के साथ, मरीन वाटर के साथ मिक्स हो रहा होता है. जो इंटरलिंक एरिया है उस वाटर को ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, और जहाँ पे ये वाटर पाया जाता है उनको एस्चुरीज बोलते हैं. ओके, लास्ट में डियर स्टूडेंट्स, मरीन वाटर मोर सॉल्टी वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अच्छा नहीं है. हम इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से. तो इन फ्रेश वाटर बायोलॉजी जो भी ऑर्गेनिजम्स, फ्लोरा है, फौना है, फ्रेश वाटर के अंदर, कैनाल्स या रिवर्स के अंदर अवेलेबल है, हम उसको फ्रेश वाटर के अंदर डिस्कस करेंगे. इट्स मीन दैट इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी विल स्टडी अबाउट द फौना एंड फ्लोरा ऑफ फ्रेश वाटर बायोलॉजी. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द मेरीन बायोलॉजी. अभी हमने डिस्कस किया कि मेरीन बायोलॉजी, मेरीन वाटर की बात की हमने, मोर सॉल्टी एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर. तो मेरीन बायोलॉजी में सिंपली डियर स्टूडेंट्स, इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी विल स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ मेरीन वाटर. मीन के ओशियनिक वाटर के अंदर जो भी लिविंग फ्लोरा और फौना है हम उसको डिस्कस करेंगे. दिस इज व्हाट मेरीन बायोलॉजी. नेक्स्ट, पैरासाइटोलॉजी. ओके डियर स्टूडेंट्स, पैरासाइटोलॉजी को समझने से पहले हम पैरासाइट को रिव्यू कर लेते हैं. हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, पैरासाइट्स आर द living organisms that take food and shelter from their living host and in return harm them. So simply parasitology, the study of parasites is called parasitology. Next dear students, human biology. ब्रांच खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन करी है. In this we will study about the human, all aspects of human cell division, human reproduction, human embryology, human paleontology, human genetics. किसी भी एस्पेक्ट से हम जब ह्यूमन को स्टडी करेंगे, दिस इज व्हाट ह्यूमन बायोलॉजी. इट्स मीन दैट इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमंस इन डिटेल. ओके, we are moving towards the second last definition, social biology. Okay dear students, in this branch of biology we will particularly study about the social behavior of animals. और अगर हम बात करें तो सोशल बिहेवियर की, तो सोशल बिहेवियर में डियर स्टूडेंट्स हम खास तौर पे जो बात करेंगे ह्यूमन बिहेवियर की, दैट मेक सोसाइटीज, व्हाट इज द रिलेशन और व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस टू अदर ऑर्गेनिजम्स दैट आर लिविंग इन देयर सराउंडिंग्स. ओके, द लास्ट दैट इज बायोटेक्नोलॉजी. ओके डियर स्टूडेंट्स, combination of three words, bio, techno and logy. Bio life, techno techniques or logy thought or reasoning to study. So in this branch of biology particularly we will study about, we will use microorganisms for what, for the welfare of mankind. कोई भी ऐसी चीज़ जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए, फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन वाया बैक्टीरिया, वी प्रोड्यूस इंसुलिन वाया बैक्टीरिया. सो in biotechnology
we will study about or we will use microorganisms for the welfare of mankind. Okay dear students, now we are moving towards the level of biological organization. पास कीजिएगा प्लीज. Okay dear students, now we are moving towards our next topic, that is levels of biological organization. और level of biological organization बात बेटे क्लियर हो रही है यहाँ पे कि किस तरह से लिविंग थिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं. हम उनके बेसिक स्ट्रक्चर से उनकी जो कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन है उस तक इसके अंदर डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स naturally occurring (92 एलिमेंट्स. नेचुरली अकरिंग 92 एलिमेंट्स हैं, जिनके अंदर से आउट ऑफ 92 16 आर बायो एलिमेंट्स. बायो हाउ मेनी 16. ओके, हम यहाँ पे बात करेंगे कि बायो एलिमेंट्स हमने इनको क्यों कहा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर यही 16 बायो एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसके अंदर ये 16 बायो एलिमेंट्स डिफरेंट परसेंटेज में जो है वो डिवाइड हुई हैं. ओके, अगर हम बात करें इन 16 में से तो आउट ऑफ these 16 bioelements, okay dear students, 6 bioelements makes 99% body mass. 99% body mass. 99% ये जो 6 बायोएलिमेंट्स हैं इनमें से 16 में से 6 ये 99% बॉडी मास बनाते हैं ह्यूमन का. तो बात रह गई यहाँ पे बाकी 10 की. तो जो बाकी डियर स्टूडेंट्स 10 बायो एलिमेंट्स हैं वो 1% बॉडी मास बनाते हैं. अब हम इनकी 1 बाय 1 परसेंटेज की बात करेंगे तो हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, कार्बन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, कैल्शियम की, फॉस्फोरस की. डियर स्टूडेंट्स, इन ह्यूमन बॉडी 65% ऑक्सीजन इज अवेलेबल, 18% carbon is available, 10% hydrogen available, 3% nitrogen available, 2% calcium available and 1% phosphorus available. Dear students, इसके बाद हम बाकी जो 1% रह गया ये हमारे पास वो 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि 99% बॉडी मास बनाते हैं. अब हम आ जाते हैं उन एलिमेंट्स की तरफ जो कि हमारी बॉडी के 1% बॉडी मास बनाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें बात करेंगे पोटेशियम की जो कि 0.035%, 0.35. ओके, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सल्फर की, इसके बाद हम बात करेंगे क्लोरीन की, इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम और हमारे पास है आयरन और कॉपर, आयरन एंड कॉपर. डियर स्टूडेंट्स, सल्फर 0.25, क्लोरीन 0.15, सोडियम 0.15, मैग्नीशियम 0.05, इसी तरह आयरन है हमारे पास 0.004 एंड द लास्ट. अब हम बात करें यहाँ पे कॉपर, जिंक, मैंगानीज और आयोडीन. डियर स्टूडेंट्स, ये चारों के चारों
एलिमेंट्स जो है वो ट्रेसेस में अवेलेबल हैं। ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं, बहुत थोड़ी मिकदार अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास जो 10 थे बाकी जो कि 1% बॉडी मास बना रहे थे, बायो एलिमेंट्स जो 10 हमारे पास थे जो कि 1% बॉडी मास बना रहे थे, हमने इनकी परसेंटेज को याद करना है। इनमें से MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। मैनी टाइम्स एग्ज़ाम के अंदर जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनके नाम पूछे गए हैं, आपने इन चारों के नाम बता देने हैं। कॉपर है, मैंगानीज है, जिंक है और आयोडीन है। इसी तरह से इनके अंदर से परसेंटेज पूछी जाए तो आपने इसी तरह से इसको जो है वो याद कर लेना है अच्छे से। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कशन यहाँ पे आज क्लोज़ कर दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो सब एटॉमिक लेवल से बायोस्फीयर तक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।